Start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Within Odisha, today, Monday, 24th of April 2017, we're at Masjid Muhammad, built for the Isal Sawab of late Muhammad Yunus Lahir Lal by Lahir and Lal family and friends through Nusrat al-Fuqara Masjid construction project. Sadly, the son of Yunus Bhai Lahir Lal, late Muhammad Yunus Lahir, who was a teacher at Buckley High School, was sadly taken away from us by the Almighty at a very younger age. Allah knows best, mashallah, and through the memory, in aid of the memory of his son, Yunus Bhai Lal and family and friends, has constructed this wonderful, wonderful building, which we'll see in a minute, through their generous contribution. So I am very, very impressed with the masjid that has been constructed. The masjid was constructed due to great need by the local village people who were praying their salah in this makeshift masjid. In this makeshift masjid here, which is still used, but only for the maktab purposes. There are plans for this building, which I'm sure the local will tell us in a minute. This is Maulana Habibullah Sahib of Odisha, who has been instrumental and who has been supervising the construction throughout and who had full control of the construction process. I'm extremely grateful for the villagers who have supported him in constructing the masjid. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इसी में नमाज भी होती थी और बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे 70 मकान है, जिसमें 70 मकान है, जिसमें बहुत सारे तलबा यहाँ मकतब में पढ़ने आते हैं। अभी उनका 4-5 दिन पहले इम्तिहान भी हुआ है और माशाल्लाह यहाँ सब इलाके में सबसे अच्छा पढ़ाई इस मकतब में होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सब मज़दूर तबके के अक्सर आदमी हैं और यहाँ पे सख्त मस्जिद की ज़रूरत भी थी। यहाँ पे नमाज जुमा भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रूरत के बिना पर ये जो मस्जिद बनाया गया। यहाँ पे सामने तालाब है, तालाब की वजह से यहाँ ये मस्जिद को ऊंचे में बनाया गया। इसके वजह से अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाए। और हमारे ये इस गांव के रहने वाले अब्दुल अलीम मास्टर साहब ये कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारा गांव जो है बहुत गरीब तबका है, लोग सब मज़दूर आ रहे हैं, सब मज़दूरी में करते हैं, इसलिए जोहर में जो है कम साथी आए हैं। असर और मगरिब में सबसे ज़्यादा लोग हैं नमाज में। असर और मगरिब में सबसे ज़्यादा नमाज आते हैं। तो असर में अक्सर कितने लोग मगरिब और असर में तकरीबन 2 सफ 3 सफ हो जाता है। 3 सफ हो जाती है, पूरी भर जाती है 3 सफ। ये लगभग 6 सफ की मस्जिद है। जुम्मा भी होता है, जुम्मा भी होती है। पहले यहाँ थाती होती है, नमाज पढ़ते थे। मेरा तालाब होने की वजह से बारिश के वक्त में जो है पानी ज़्यादा भर जाता है, इसमें भर जाता था बारिश को। जी जी, जिस वजह से वो मस्जिद को जो 6 फीट हाइट पर किया गया, उसका फाउंडेशन। तो तालाब इधर है, एकदम ही नज़दीक है। ये तालाब है, अभी पानी सूखा है, लेकिन बारिश में पूरा भर जाता है। जी हाँ। और फिर ज़रूर पड़ती है। तो मस्जिद का ये जो पोर्शन रखा है वो बाहर खुला, तो क्या प्लान है आपका? आपको एक्सटेंशन करके यहाँ सहन करना है, खारिज सहन करके, और ये स्ट्रक्चर को ऊपर लेके जाना है। तो मकतब ऊपर मकतब ऊपर रखेंगे, नीचे सहन रखेंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी कामना को पूरी करे। Also the water pump here wasn't work in order. So as a traditionist,
this is where the wazoo take place. People do the wazoo here, but inshallah, when Sehen is Sehen tayar hai na. but at the same time, when the sign and the construction plan that they have, when it's concluded, they'll have a proper wazoo khana. And also, there are toilets and bathroom there, which the Jamaat people uses, and the local also uses. Requests, and although the Lau family have met the financial implication on the construction of the masjid, alhamdulillah, but if the family, a request has been made by the villagers that if the family could see their way of completing the construction work that is needed. Alhamdulillah, it's a beautiful, beautiful masjid that we shall see in a minute or two. So humble request is being made for the construction. जी यहाँ चप्पल आई हैं. So now we shall enter the Masjid Muhammad from the other side. The reason why the masjid has been raised from the original plant is because of the subsidence of the ground area, and during the rainy season, all this area get filled up and come to the level. So in order to avoid the water coming into the masjid, they've raised the floor level up so high that inshallah during the monsoon period, when there is a heavy rainfall, inshallah the water will keep away from the masjid. It So is around henceforth- 6 feet high. Yes, in henceforth, the cost of construction was bit over the budget, but in my opinion, rightly so, because it's better to be safe than sorry, and also you have to stop water coming seeping into the masjid area. This is now the masjid area. This is second Alhamdulillah. entry. This is the other side entrance from the wazoo khana, and as you can see, it's properly the floor is tiled. Granite. Granite with granite tiles, and also it's tiled throughout, very well decorated with enough light. And alhamdulillah, there are also Quran Sharif and other kitabs in there, mashallah. There are 6 safs and we have granite stones here, which is This is for the mihrab, where the Jummah khutbah takes place also. And this masjid is one of the better maintained masjid that we have come across, alhamdulillah. the walls are tiled also. And when we came, the villagers were very, very excited with the masjid, and has been extremely beneficial. As this masjid has been extremely beneficial to all the villages and the nearby villages who come, especially for the Jummah Salat. Total we have 6 safs, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 safs. And this is the old masjid, which is used as a maktab right now. Inshallah, when the villagers plan for the Sehen and other construction work, this will be removed. You can see how high the masjid is from the maktab that we've been in. This is the roof of the maktab. So you can see the ground level that needed to be, the foundation also needed to be such height. You can see that this is the roof of the maktab here. So you can just imagine how high the masjid was taken up. And cement and other material not very not cheap in this area. So henceforth, that's why they couldn't do a shahen here. And inshallah, we will try to assist and support as much as we can. As a part, we have one saf Sehen this area.
enjoy it. Hmm. Due to the expansion we have just stay. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब गांव वाले खुश हैं, मस्जिद अच्छी है, आपको आपको जो अल्लाह ने जो दिया है बहुत बड़ी खुशी नेमत नसीब हुई जी। अब मस्जिद में जवान भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, तमाम आएंगे जितने क्योंकि अच्छी मस्जिद होती है तो घर में बैठने को शौक नहीं होता है, मस्जिद में लोग अच्छी होती है तो इबादत करने को भी शौक होते हैं माशाल्लाह। और ये तो माशाल्लाह ग्रेनाइट का आपने बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, जितने भी शुक्र अदा किया जाए कम। हम शुक्र अदा करते हैं लहर फैमिली को जो दिए हैं इसमें, अल्लाह उनको इसका बदला अता फरमाए और उनके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए और उनके घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इसको सारी उम्मत के लिए इस मस्जिद को कबूल फरमाए। हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह इनका इसका बदला अता फरमाए। जिस फैमिली ने ये मस्जिद बनाया ना, तो उनका लड़का 35 साल का था, वो स्कूल टीचर्स का था, हाई स्कूल में स्कूल टीचर, पर अचानक अल्लाह उनका इंतकाल हो गया। तो उनके इसाले सवाब के लिए वो फैमिली ने और उनके दोस्तों ने मिल बनकर ये मस्जिद उनकी याद में उन्हें याद में, उनका नाम भी मोहम्मद था, समझना, इसलिए मस्जिद में मोहम्मद रख गई और उनके इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाई गई। तो ये वो मरहूम के लिए आप जरूर दुआ करना। जी जी। हजरत आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नमाज पढ़ने का शौक पहले से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया पहले से ज्यादा बढ़ गया। अल्लाह का मस्जिद खुशनुमा मस्जिद है, इबादत करने के लिए दिल खुश हो जाता है, जाम हो जाता है। असल बात हमारी है, बिजनेस वाले आदमी हैं, दिन में सफर निकल जाते हैं कहीं, फिर शाम को आने के लिए आ जाते हैं मजदूर आदमी जी। गाँव लीजा बात है, ये 70 घरों का ये गांव है जी, ये इलाका है जी। तो जुम्मा के दिन दूसरे बाहर वाले गांव के भी आते हैं जी, जगह होती है आजू बाजू का जो छोटा छोटा गाँव है यहाँ को आते हैं जी 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 बहुत जी जी। माशाल्लाह चार गांव है जिसमें जुम्मा नहीं होती, जुम्मा नहीं होती 4 गाँव में जी, तो वो लोग यहाँ माशाल्लाह। हमको भी खुशी होती है, उनको भी। ईद के दिन तो ये बाहर वाला भी फुल हो जाता है। फुल होगा इंशाल्लाह, आइंदा ईद तो इसी में होगा, आप देखेंगे क्या हो रहा है, कितनी हो जाए अल्लाह करे तो फिर उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है वो भी आप हम मौलाना को दे दीजिएगा जी जी, कि क्या क्या बनाना है, वुज़ू का एरिया थोड़ा सहन आप लोग का और अल्लाह तबारक तआला का एहसान हो बकिया जो है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है अल्लाह के जात पर। अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर सजदा करके 2 रकात पढ़नी है जी। और ये मरहूम के लिए खास से बहुत जवान लड़का था, अच्छा था और बहुत तंदुरुस्त था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने ले लिया, अचानक ले लिया बेचारे को। अल्लाह उनको नूर, कब्र को नूर से बरसाए और उनकी आखिरत अच्छी करे और ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जी जी। मौलाना आपको कुछ कहना है? जज़ाकल्लाह। हम जितना भी इनका शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला इनका नेमल बदल अता फरमाए, उनके कब्रों को नूर से भर दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और तमाम मुसल्ली की तरफ से कहा जाता है कि हम आपका शुक्र अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इसका बदला अता फरमाए। I think this masjid, Hanif bhai, is well maintained and well planned, and you see the fans also are numbered. माशाल्लाह, The fans are numbered. The switches are also numbered. It is a very rare case where we find such planning of the villagers. गांव वालों के लिए बहुत ही हमको खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतना प्लान किया कि स्विच के ऊपर भी नंबर लिखा कि किसी को तकलीफ नहीं पड़ती। जी जी जी। आप लोगों की तवज्जो नहीं होती तो काम नहीं होता। और पंखे भी ऐसे रखे हैं कि सबको हवा पहुँचती है, माशाल्लाह।
हमारी तो एक आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी मस्जिद तो बना दी, मस्जिद को साफ रखना, साफ और आबाद रखना ये अल्लाह का घर है, आपकी अमानत है। पहले आवाज के साथ साथ इसको बड़े सुकून के साथ इसका बहुत और जो भी जमात वाले आए उनको नुसरत करना। ये तो पहला अव्वल काम ही हमारी है। बच्चों की जो मकतब की तालीम होती है वहाँ आए थे, बताइए हो गए 2-4 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, बहुत खुश हो गए। सेकुलर 150 के करीब बच्चे आते हैं तालीम के लिए, बच्चों का प्रोग्राम। मौलाना हाँ यहाँ पर शेख साहब आए थे ना, शेख साहब यहाँ पर वहाँ पे सुकिंदा में आए थे। अच्छा यहाँ भी मतलब आए शेख मुस्तफा नहीं शेख साहब हजरत आए। हजरत मौलाना मुनीर साहब यहाँ पे मौलाना मुनीर साहब जी। पीर साहब आए थे, जी। माशाल्लाह। तो मकतब के प्रोग्राम में तो मौलाना आए थे, बताए जी जी जी। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे मकतब के बच्चों का प्रोग्राम था, मैं भी यहाँ पे जुमा के दिन आया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चों ने बहुत अच्छे से कुरान सुनाया और यहाँ पे दीनियात सुनाए, माशाल्लाह। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों को आगे चल के दीन का सब कुछ दाई बनाए। Jazakallah everybody, Jazakallah to the Lal family, and Jazakallah to all the friends, and Jazakallah to all the villagers. MashaAllah, they have come forward, they are waiting for us since long. अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह इस मस्जिद की आने वाली ज़रूरतों को पूरी फरमाए, और आपके मकतब की जो प्लान है, सहन का प्लान है, अल्लाह उसको पूरा करे। आमीन।